السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج آپ کی بزم خدمت میں نئی پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا اس پوڈ کاسٹ میں جو عنوان ہے، نماز کا عنوان ہے۔ نماز کا عنوان ہے۔ الحمدللہ ہم نے وضو پر پوڈ کاسٹ کیا ہے، غسل پر، تیمم پر، نجاست پر، سارے تسلسل کے بعد آج نئی پوڈ کاسٹ نماز کا عنوان لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ نماز جس نے امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں نماز کا وقار، سجدوں کی شان، عبادت کی شان سنگلاخ وادی میں محفوظ رکھا ہے۔ آج اسی امام عالی مقام کی نماز، جو حسینی نماز، اور یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی، آج حسینی نماز کا مکمل عنوان لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ کیا ہے اسٹیٹس آف صلاح، ریالٹی آف صلاح؟ آج ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے، مفتی صاحب ہمیں اس کا جوابات عنایت کریں گے۔ مفتی صاحب سے ہمارا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پورا سوال ہو گیا جی، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ یہ ہے پورا سوال۔ ہاں، مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما وبعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمات لینے اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بالخصوص نمازی بنائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ دن اور رات میں کل کتنی، اچھا ایک سوال اس سے پہلے، اپنے حسینی نماز کہا ہے تو کہیں لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ حسین کی نماز، اہل حدیث وہابی لوگ خاص طور سے سنیوں کو بس الفاظ میں ہمیشہ الجھا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ حسینی نماز سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز جو حسین پڑھ رہے تھے اور حسین کے کیمپ والے پڑھ رہے تھے، حسینی نماز۔ ہاں، یزیدی لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور حسینی لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن امام علی مقام کی نماز قبول ہے اور یزید کی نماز، یزیدیوں کی نماز قبول نہیں، لہٰذا ہم مقبول نماز کا احکام بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، دن اور رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں۔ دن اور رات میں، یہ بھی احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، معراج کی شب، الحمدللہ۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک کا وقت بتاتا ہوں۔ فجر کا وقت جو ہے، اجالا ہونے سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور جب اجالا شروع ہوتا ہے تو اجالا شروع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا اور سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر پڑھنا مستحب ہے، خوب اجالا ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تو فجر کا ہوا۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک دم سمجھیے سورج ایک دم سیدھ میں ہے تو نہیں پڑھ سکتے، وہ مکروہ وقت میں اس کا حکم آئے گا جب ڈھل جائے۔ ہاں، ڈھل جائے، یہ اشارہ جو کیا میں نے سمجھ بھی جائیے آپ۔ سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے، مثلا آپ 6 فٹ کے ہیں تو آپ کا سایہ بھی 6 فٹ کا ہے، تو جس چیز کا سایہ جتنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز کا دگنا سایہ ہو جائے، ہاں،
दोपहर, हाँ माशाल्लाह। दुगना साया हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म हो जाता है, ढलने के बाद शुरू होता। जब सूरज ये हो जाए तो ढलने के बाद शुरू हो जाता, जवाल जिसको कहते हैं, ढल जाए तो शुरू होता, और डबल साया हो जाए तो खत्म हो जाता। यहीं से आगे होगा कि असर का वक्त शुरू हो जाता। हाँ, इसीलिए असर का वक्त जो है, जोहर का वक्त जब खत्म हो जाता तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। और सूरज डूबने से पहले तक रहता है, मगर असर में ताखीर हमेशा मुस्तहब है, हमेशा मुस्तहब है, लेकिन न इतनी ताखीर कि सूरज की टिकिया में जर्दी आ जाए। सूरज की जो टिकिया है उसमें जर्दी आ जाए, नहीं, उसकी तपिश कायम रहे। जी। मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद शुरू हो जाता है और उत्तर दक्षिण फैली हुई सफेदी गायब होने से पहले तक रहता है। उत्तर दक्षिण समझ रहे आप? हाँ, ये जो फैली हुई सफेदी रहती ना, वो अगर गायब हो जाए तो उस वक्त तक रहता है, मगर अव्वले वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ना मुस्तहब है और ताखीर मकरूह है। जानबूझकर जब करेंगे ताखीर तो क्या है? मकरूह है। इशा का वक्त उत्तर दक्षिण फैली हुई सफेदी के गायब होने से शुरू हो जाता है। अगर कंटिन्यू देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खत्म होता तो वो शुरू हो जाता। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे अब असर का मामला है, खत्म हुआ, मगरिब शुरू हो गया, ठीक है ना? मगरिब खत्म हुआ तो इशा शुरू। तो वही इशा का वक्त उत्तर दक्षिण फैली हुई सफेदी के गायब होने से शुरू हो जाता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता है, क्योंकि उजाला हो जाए तो फिर फजर का शुरू हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन तिहाई रात ताखीर मुस्तहब है, तिहाई रात ताखीर मुस्तहब है। आधी रात मुबाह है, ध्यान दीजिएगा, और आधी रात के बाद मकरूह है, क्योंकि आपने इजी ले ली। लेकिन ये अल्लाह वाले इससे मुस्तस्ना है। ये जमात से जो पढ़ते हैं ना इमामत वगैरह के साथ, उनके लिए ये मसला है। समझ रहे हैं ना आप? अल्लाह वाले इससे मुस्तस्ना, वो रात भर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये पूरा इशा का वक्त भी हो गया, फजर का भी तो हो ही गया था। आपका सवाल मुकम्मल हो गया। नाजरीन, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब से मैं सवाल किया था, नमाज, कुल नमाजें कितनी हैं दिन भर में? मुफ्ती साहब 5 नमाजें बताए, उसके औकात भी बताए हैं, बगौर समाअत फरमाए हैं। मैं मुफ्ती साहब से दूसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं। नमाज की मकरू औकात क्या है? सवाल बड़ा छोटा है लेकिन जवाब बड़ा लंबा लंबा है इसका। हाँ, चौट है, जैसे समंदर दर कूजा कूजे में समंदर है। सूरज निकलने के वक्त, जब सूरज निकल रहा है तो वो भी वक्त मकरूह है, जब निकल रहा है। हाँ, इसी तरह सूरज डूबने के वक्त, जब डूब रहा है, वो भी मकरूह वक्त है। दोपहर के वक्त किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़ सकते आप। ये 3 वक्त खास तौर से जो बताया मैंने, कौन कौन सा वक्त बताया? निकलते वक्त और डूबते वक्त, दोपहर के वक्त, सूरज तालु पे जब, हाँ हाँ, दोपहर के वक्त, हाँ, ढलने के वक्त बाद नहीं, हाँ, पहर के वक्त। लेकिन एक इसमें मुस्तस्ना है, अगर उस रोज असर की नमाज नहीं पढ़ी है, जैसे सूरज डूबने के करीब है और असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी है, तो सूरज डूबने के वक्त पढ़ ले, मगर इतनी देर करना सख्त गुनाह है। अभी डूबा नहीं है, डूब गया तब तो फिर कज़ा करेंगे। लेकिन अगर आप 4 रकात पढ़ सकते हैं और 5 मिनट बाकी है तो आप पढ़ लें। डूबा भी नहीं, अगर टिकिया दिख रहा है तो अगर बफर्जे मुहाल छूट गई है आपकी नमाज तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ताखीर का गुनाह जरूर होगा। पढ़ने का सवाब तो होगा लेकिन ताखीर का गुनाह जरूर होगा। इसी तरह जब सूरज का किनारा जाहिर हो, उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज नहीं। फजर का नहीं, सूरज का किनारा जाहिर हो, सूरज निकलना, उसका किनारा जाहिर हो गया, उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज नहीं पढ़ सकते, ताकि पूरी तरह सूरज चमक उठे, फिर इशराक का वक्त शुरू हो। इशराक बोलते ही है चमक को, इशराक नूरी चमक, समझ रहे आप? हाँ, जब सूरज पर नजर ठहरने लगे उस वक्त से लेकर, ध्यान दीजिएगा, डूबने तक नमाज पढ़ना जायज नहीं।
आप सूरज देख रहे हैं, आंख नहीं चुंधिया रही है, एकदम देख ले रहे हैं आराम से, जैसे चांद को देखते हैं, तो आपकी नजर टिक गई, समझिए, आंख नहीं चुंधियाई। तो जब सूरज मतलब ये कि नजर ठहरने लगे उस पर, आंख पर कोई असर न डाले, उस वक्त से लेकर डूबने तक नमाज नहीं पढ़ सकते। वो ऊपर जो बताया मैंने वो बमजबूरी बताया था, इस्तिस्नाई सूरत है वो, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ ले सकते, उस दिन अगर असर की नमाज नहीं पढ़े हैं। लेकिन उमूमी मकरूह वक्त क्या है कि अगर सूरज आप देख रहे हैं और आपकी आंख उस पर टिक जा रही है, आप चुंधिया नहीं रही है, जैसे दोपहर में देखे तो देख नहीं सकते सूरज को, तो उस वक्त से लेकर डूबने तक नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ये भी वक्त तकरीबन 20 मिनट होता, डूबने मतलब टिकने के बाद से डूबने तक का वक्त 20 मिनट होता, समझ रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फुक़हा का क्या एहसान है यार इस्लाम। खैर, इसी तरह ठीक दोपहर के वक्त, समझ रहे आप, तकरीबन 40-50 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज नहीं है। ठीक दोपहर के वक्त, ये बहुत अहम मसला है। ठीक जैसे आप मक्का मदीना जाएंगे, आप देखे भी होंगे, पट से नमाज पढ़ लेते हैं वो लोग, और 2-3 बजे ही असर की नमाज भी पढ़ लेते हैं वो लोग। ये गलत है, इसे ठीक है, मतलब ये कि जब वो मुकल्लिद ही नहीं है, तकलीद ही नहीं करते, तो शाफी का यहां पर नाम कैसे ले रहे हैं आप, मिस यूज कर रहे हैं आप। शाफी मजहब में अगर आप करते हैं तो तकलीद कीजिए फिर, और जब तकलीद कर रहे हैं तो उर्स भी मनाइए, फिर हर चीज कीजिए ना इमाम शाफी ने जो किया। ये अवाम में मिसकोट किया जाता है कि शाफी मजहब के एतबार से, उनसे पूछिए क्या वो शाफिल मसलक के इमाम हैं? वो तो गैर मुकल्लिद कहलाते अपने आप को। इसलिए यहां पर फोर्थ इमाम का सहारा न लिया जाए, समझ रहे आप? हाँ, इसी तरह अगर मकरूह वक्त में जनाजे का भी एक मसला इसी से रिलेटेड हो जाए कि मकरूह वक्त में अगर जनाजा लाया जाए, शायद सवाल की कंटिन्यूटी भी हो जाए। अगर जनाजा लाया जाए, ध्यान दीजिए, लाया जाए, मैं जुमले पर गौर कीजिए, मकरूह वक्त में जनाजा लाया जाए, अब घर में है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ला दिया गया पढ़ाने के लिए, तो फिर अगरचे मकरूह वक्त है तो पढ़ाने में कोई कराहत नहीं। कराहत उस सूरत में है कि पहले से जनाजा तैयार मौजूद है और ताखीर यहां तक की कि वक्त कराहत आ गया। अब 10 बजे जनाजा ले आए सुबह में, अब इतनी ताखीर किए कि ज़ोहर का वक्त हो गया वो, या फिर असर के वक्त फौरन लाए, आप इतनी ताखीर की कि मगरिब के डूबने का वक्त हो गया, तो ये ताखीर अगर करेंगे तो ये मकरूह है। लेकिन सडनली उसी वक्त अगर लाया गया तो पढ़ लेना, कोई कराहत नहीं है उसमें। इसी तरह इसी से एक और सवाल, मकरूह वक्त में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने का भी हुक्म है। मैं चाहता हूं कि मकरूह का पूरा सवाल ही एकदम इसे ले। कुरान शरीफ वगैरह भी ना पढ़ना बेहतर है, लफ्ज बेहतर पर गौर कीजिए, हराम नाजायज नहीं कहा मैंने, ना पढ़ना बेहतर है, और पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया, मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था मकरूह वक्त क्या है। मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज से जो है सो बताया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबते वक्त ये मकरूह वक्त है, और सूरज जैसा तालु पे रहता है ये भी मकरूह वक्त बताया गया है। और उस वक्त अगर नमाज जनाजा लाया गया तो पढ़ लिया जाए, अगर लाकर ताखीर करते हैं तो ये वो मकरूह हो जाता है। जी बराबर, जी हाँ, मकरूह वक्त में अगर जनाजा लाया गया मस्जिद में तो पढ़ ले सकते हैं। अगर मकरूह वक्त में असर के वक्त ला लिया गया और मकरूह वक्त तक उसको जो है ना वेट कर दिया गया तो वो पढ़ना मकरूह है, मुफ्ती साहब ने फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी में एक सवाल, मकरूह वक्त में कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? मकरूह वक्त में कुरान शरीफ पढ़ना बेहतर नहीं है, अगर पढ़ लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से मैं 5वां सवाल करने जा रहा हूं, 5 नमाजों की तादाद कुल कितनी है? जैसा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, रकात की जितने तादाद है कुल कितनी है? मुफ्ती साहब जरा रोशनी से। ये सवाल करके आपने बड़ा एहसान किया उम्मत पर, क्योंकि आज जो है फर्ज पढ़ के भाग जा रहे हैं लोग। ऐसा लगता है कि सुन्नत किसी और के लिए पढ़ा जाए और फर्ज अल्लाह के लिए पढ़ते। नमाज
अल्लाह ही के लिए, चाहे वो नफल क्यों ना हो। और इसकी अहमियत जरा समझिए, चाहे वो अस्र की सुन्नत को छोड़कर, अब समझिए, अस्र की सुन्नत को छोड़कर इशा की जो सुन्नत है पहली 4 रकात, इसको छोड़कर कोई सुन्नत भी अगर छोड़ेंगे तो सख्त गुनाहगार हैं। सुन्नत मुअक्कदा करीब वाजिब की होती है। मुअक्कदा का मतलब होता है ताकीद। आप हम सब ने ये सब नहीं किया है ना। फुकाए किराम और उलमाए रब्बानियीन का एहसान ना होता तो आज हमारे पास क्या होता, कुछ होता। लेकिन आज फर्ज, और खास तौर से अहले हदीस वहाबिया जमात के जितने भी लोग हैं फर्ज पढ़ के चले जाते हैं, और पूछो तो अरे सवाल होगा फर्ज का। याद रखिएगा उम्मत के लोगों, सवाल के लिए नमाज ना पढ़ो, कबूल के लिए नमाज पढ़ो। ये लफ्ज एकदम कोट कीजिए आप। नमाज किसके दे सकोगे आप खुदा को जवाब? 12 घंटा एक दिन में आप 24 घंटे में कितने गुनाह करते हैं, इसका तो जवाब दे नहीं सकते। पूरी उम्र की नमाज का जवाब देने चले आप। इसलिए मैं कहता हूं नमाज कबूलियत की नीयत से पढ़िए, जवाब देने की नीयत से ना पढ़िए। वो हिसाब लेने वाला, इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ कर दे। हिसाब हम नहीं दे सकते। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि फर्ज पूछा जाएगा, उनको बस यही कहूंगा कि अगर अल्लाह ने नफल कबूल कर लिया और फर्ज ना कबूल किया तो नफल बेहतर हुआ ना। खुदा की रहमत बहाना ढूंढती है, किस बहाने से कब कबूल कर ले पता नहीं। आज भी यह बताइए कि इमाम आली मकाम 55 साल की तकरीबन कमोबेश उम्र थी जब करबला गए, सही है? उनसे पहले इबादतें आपने की होंगी कि नहीं? पूरी इबादतें की होंगी, लेकिन हाईलाइट किस इबादत को किया जाता है? करबला में जो सजदा किया गया है, वो सजदा शब्बीरी। तो अल्लाह पाक से आप हमेशा झुकिए सजदे में, तवाज़ु और इनकिसारी। कौन सी अदा आपकी पसंद आ जाए और खल्क में आपका शोहरा कर दे और इज्जत दे दे आपको, समझ रहे हैं ना आप? तो हिसाब देने के लिए नमाज नहीं, कबूलियत के लिए पढ़िए। बहरहाल तादाद रकात, और इसमें एक और ऐड कर दो आप कि तादाद रकात और उन रकातों की नियतें, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ, सुन्नत की, नफल की नियत, बराबर बराबर। उसमें एक और सवाल ऐड किए, कज़ा उम्री का एक सवाल ऐड कीजिए। किसी की उम्र भर की नमाज कज़ा हो गई तो कैसे अदा करना, उस ऐड कर लें आप। मैं पहले इसका जवाब देता हूं। देखिए, फज्र की जो नमाज है, हम तरतीब से बोल रहे हैं, फज्र की कुल 4 रकात है। फज्र की कुल 4 रकात है। पहले 2 रकात सुन्नत है, फिर 2 रकात फर्ज है। अब आप उसकी नियत भी देख लें। सुन्नत की पहले नियत कैसे करेंगे? उर्दू में नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फज्र की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। सुन्नत में तो यहां इमाम वगैरह का मसला नहीं है, ठीक है? ये सुन्नत की है, ये उर्दू में ही रहने दें इसको। इसी तरह फर्ज की कैसे नियत करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फज्र की, नमाज फर्ज फर्ज पहले बोलेंगे, नमाज फर्ज फज्र की, नमाज फज्र की, हाँ, अल्लाह ताला के लिए। मुख्तदी इतना और कहेगा कि पीछे मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इमाम साहब क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे वीडियो हमारे इमाम जो ट्रेंड होना चाहते हैं वो भी सुनते हैं। इमाम साहब कहेंगे मैं इमाम हूं उनका जो हाजिर हैं और उनका भी जो हाजिर होंगे। अरबी में है अना इमामुल लिमन हज़रा व मैं यहज़ुर। अगर इमाम मर्दों की भी जमात है, उसमें औरतों की भी है, तो उसमें क्या करूंगा? औरतें तो खैर जमात से नहीं पढ़ सकती, उनके लिए नहीं है। अच्छा। जमात और ईदैन औरतों के लिए नहीं है। हाँ, नहीं, घर की औरतें अपने पीछे पड़ जाती, वो नहीं, घर का भी मसला नहीं है। जब उन पर जमात ही नहीं है, उनको तन्हा पढ़ना ही अफजल है। समझ रहे हैं ना आप? वो हरमैन मुस्तस्ना है इससे। सिर्फ आम में जुमा और ईदैन उनके लिए है ही नहीं। अरे जब आप पीरियड्स के आलम में नमाज को माफ करा दिए तो अब इसमें क्यों जिद कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? हाँ, खैर, तो अना इमामुल लिमन, मैं इमाम हूं जो प्रेजेंट है और जो होंगे, जो हाजिर है और जिनकी रकात छूट जाती है ना, मैं उनका भी इमाम हूं। क्या बात है, देख रहे हैं ना आप? जो कश्ती पे नए भी बैठे हैं ना, उनके भी वो इमाम है, पेशवा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक इमाम को इज्जत अता फरमाए। खैर, ये तो फर्ज की हुई। इसी तरह जोहर में कुल 12 रकात है।
जोहर में फजर का तो हो गया मुकम्मल, 12 रकात है। ध्यान दे इसको, पहले 4 रकात सुन्नत है, फिर 4 रकात फर्ज है, फिर 2 रकात सुन्नत है, फिर 2 रकात नफल है। हाँ, आप हाजिर रहिए। हाँ, पहले 4 रकात सुन्नत है, फर्ज है, नफल है। कितने हो गए कुल? 12 हाँ, अब 4 रकात सुन्नत की नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर की, नमाज सुन्नत, यानी जो भी सुन्नत हो या फर्ज हो उसको पहले बोलेंगे। अच्छा, जैसे फर्ज बोले तो नमाज फर्ज फजर की, ऐसे यहां बोलेंगे नमाज सुन्नत जोहर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ठीक। और अगर सुन्नत में सुन्नत रसूलुल्लाह की नहीं बोल के अगर वैसा पर इबादत अल्लाह, हम सिखा रहे हैं अभी आपको, और जब सिखा रहे हैं तो जो नए बोले थे वो ये बोल सकते हैं कि नमाज होगी कि नहीं, हम कहेंगे उनकी हो जाएगी, लेकिन अब आपको बोलना है। क्लियर बात है। चलिए, अब जो है ये तो सुन्नत की हुई। अब फर्ज की नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज जोहर की अल्लाह ताला के लिए, और मुक्तदी इतना और कहेंगे पीछे, और वो इमाम साहब क्या कहेंगे? जो हाजिर है, जो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब और कहेंगे। कभी कभी आप लोगों को भी इमामत का मौका मिलता है तो ये ध्यान में हमेशा रखें। हाँ, इसी तरह अब 2 रकात सुन्नत की, तो वो भी तो एकदम आसान है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जोहर की, बाद जोहर जिसको कहते हैं, अल्लाह, उसमें बाद नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। जोहर की 2 रकात जोहर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसमें एक और लफ्ज आपके दरमियानी गुफ्तगू में एक और सवाल ऐड कर दिया, अगर मुंह से नहीं बोले हैं तो वो अभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नफल की कैसे करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इसमें एकदम सिर्फ ये बोलेंगे, ये इसमें देखिए इख्तियार है, ये देखिए। हाँ, इसी तरह असर की कुल की तादाद है 8। हाँ, पहले 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फर्ज। ठीक है। हाँ, इसी तरह नियत कैसे करेंगे? वही सुन्नत असर की, मतलब नमाज 4 रकात नमाज सुन्नत असर की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फर्ज की नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज असर की अल्लाह के लिए, मुक्तदी इतना और कहेंगे, और इमाम साहब भी वो कहेंगे, हमने बता दिया। मगरिब में कुल 7 रकात है। मैं ये ध्यान देखे क्या कहा मैंने? फजर में 4 है, और फजर के बाद जोहर में 12 है, असर में 8 है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब असर के बाद क्या है? मगरिब। मगरिब में कुल 7 रकात है। पहले 3 रकात फर्ज है, फिर 2 रकात सुन्नत है, फिर 2 रकात नफल है। नियत कैसे करेंगे? नियत की मैंने 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब की, फर्ज पहले है, मगरिब की अल्लाह ताला के लिए, मुक्तदी और कहेंगे पीछे से इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब 2 रकात सुन्नत की कैसे करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मगरिब की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। नफल की नियत, नियत की मैंने 2 रकात नफल अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब जरा इशा के वक्त की, ये जो 9 रकात पढ़ के चले जाते हैं ना, हो तो जाएगा, लेकिन खुलकर कहो एक जुमला, चावल सिर्फ खाए तो पेट तो भर जाता, मजा नहीं आता। मजा कब आता? जब उसके अंदर बूटी हो, उसके अंदर दाल हो, उसके अंदर दीगर चीजें हो। मैं तो चावल खाएंगे पेट भरेगा कि नहीं? आप कच्चा ब्रेड भी खा लिए तो सिर्फ भरता कि नहीं? तो मजा आता? मजा वाली चीज को छोड़ रहे हो आप यार, सुभान। खैर, तो इशा के वक्त की कुल तादाद 17 रकात हैं, 17। हाँ, पहले 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फर्ज, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल, उसके बाद 3 रकात वित्र वाजिब, फिर 2 रकात। हाँ, वित्र से पहले भी नफल है और वित्र के बाद भी नफल है। इसकी नियत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सुन्नत की करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत इशा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब जो है फर्ज की भी वही नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज इशा की अल्लाह ताला के लिए, मुक्तदी और ये कहेंगे पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। फिर 2 रकात सुन्नत की नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत इशा की अल्लाह ताला के लिए, सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब फिर नफल की नियत करेंगे, उसमें जो है ना सुन्नत नहीं बोलेंगे, नफल है, 2 रकात नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ,
ہر بات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے. میں اسی سے ان تمام جماعتیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نماز اللہ ہی کے لیے ہے, افسوس بات یہ ہے کہ نیاز, فاتحہ, یہ سب تو آپ کو غیر اللہ نظر آ جاتا, اور جو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو آپ. سنت یہ تو اللہ کے واسطے, نفل بھی اللہ کے واسطے, تو جو ایگزیکٹ اللہ کے واسطے وہ کرتے نہیں, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, نیاز, فاتحہ یہ غیر اللہ کے واسطے ہے. ذرا ہم سے تو پوچھو کہ یہ غیر اللہ کے واسطے ہے. کوئی بھی فاتحہ میں سب سے پہلا لفظ اگر دعا کے لیے اٹھتا ہے تو اللہم, اللہم عربی میں, اور اردو میں اے اللہ, سب سے پہلا ہی لفظ ہوتا اے اللہ, جو حاضر ہے قبول فرما. تو یہ غیر اللہ کے لیے اگر ہوتا تو اے غیر اللہ یہ بولتے نا ہم, اے غیر اللہ تیرے لیے حاضر ہے قبول کر, لیکن نہیں اے اللہ اردو میں, اور عربی میں اللہم تقبل. خیر, اب ذرا غور کیجئے, سنت کی ہو گئی, وتر کی بھی ہو گئی, نہیں وتر کی شاید نہیں ہوئی. وتر کی میں نیت کرتا ہوں, نیت کی میں نے 3 رکعت نماز واجب وتر کی, واجب پہلے بولیں گے, جو کوالٹی ہوتی ہے نا فرض, سنت, نفل, اس کو پہلے بولیں گے, اور اس کے بعد ہاں. تو نماز واجب وتر کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. پھر نفل کی نیت کریں گے, نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہی تعداد رکعت اور نیتیں اسی کا سوال کیا تھا. محترم سامعین ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا میں نے مفتی صاحب سے کل کتنی رکعتیں ہیں دن میں, دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں. تو مفتی صاحب فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے بتائے ہیں. فجر کے 4 رکعت 2 سنت 2 فرض, ظہر کی 12 رکعت 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, عصر کی 8 رکعت 4 سنت 4 فرض, مغرب کی 7 رکعت 3 فرض 2 سنت 2 نفل, عشاء کی 17 رکعت ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, 3 واجب تر 2 نفل. اور مفتی صاحب نے فرمایا صرف عصر کی 4 رکعت سنت جو پہلی پڑھی جاتی ہے وہ مستثنا ہے, اگر پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, غیر موقدہ ہے. اور جتنے نمازوں کے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہے, تاکید ہے. عشاء کی بھی جو 17 رکعت ہے, جو پہلے 4 سنت وہ بھی غیر موقدہ ہے. میں نے اس پر یہ زور دیا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھیں, برابر آپ کیوں نہیں پڑھیں جب یہ ایگزیکٹ واسطے اللہ کے لیے ہے. اس میں تو کوئی شرک کا عنوان نہیں ہے, شرک کا عنوان نہیں. اور سب سے زیادہ جو غفلت برتتے ہیں جماعت والے, ابھی رمضان آئے گا تو ہم 20 رکعت نہیں پڑھیں گے, 8 رکعت پڑھیں گے. یہ کیسا ہے, ہر چیز پر کٹوتی کرتے, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اور کرنے کی بھی جب بات آتی تو کٹوتی کرتے. گپے لگائیں گے کٹوں پر بیٹھ کر. ہم نے جو سب سے بڑا زور یہ دیا کہ بھائی آپ پڑھیے, اگر نفل پڑھتے وقت اللہ پاک نے قبول کر لیا تو فرض سے بہتر ہے, فرض سے بہتر ہے. خدا کی رحمت کیا ڈھونڈتی ہے, بہانہ ڈھونڈتی ہے. سبحان اللہ, مفتی صاحب نے بہترین بات کہی ہے, خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اور ہمیں اس چیز کو بھی لائٹ ایزی نہیں لینا چاہیے, ہر سنت موقدہ اور موقدہ کی بھی پابندی کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے فرض بھی قبول ہو سکے. بہت ہی اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہم وہی نماز جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ عنہ جو نماز کی لاج رکھے ہیں, نماز کی لاج رکھیں, آپ کی جابازیوں سے یا حسین نام باقی رہ گیا. نماز کا اسٹیٹس آف نماز اور ریالٹی آف صلاح جو ہے, جو امام علی مقام نے بتایا ہے کربلا میں, ایک نماز ہو رہی تھی, جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی ہے, وہاں حسینی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی اور یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی تھی. آج ہمارا عنوان حسینی نماز جو ہو رہی تھی اس کا عنوان لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور مفتی صاحب سے میرا 8واں سوال یہ ہے, مفتی صاحب یہ بتائیں مرد اور عورتوں کی نمازوں کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے اس کو بتانے سے پہلے ایک اور سوال اس میں ایڈ کریں آپ, کہ نماز اگر قضا ہو جائے
तो कज़ा नमाज में क्या जो तादाद रकात हमने बताई है हर एक की कज़ा होगी, जैसे 17 रकात की कज़ा होगी ऐशा में, या जोहर में 12 जो आपने कहा उसकी कज़ा होगी, असर में 8 की कज़ा होगी? तो इसका कज़ा का नियत, जैसा अब नियतों के आप बताए हैं कैसा नियत करना है इमाम को और मुक्तदी को, वो तो बता। इसमें उससे पहले मैं ये सवाल करना, मर्द औरत की जो है, इससे पहले ये सवाल मेरा ये है, अगर नियत करना भूल जाए। हाँ, ये भी एक सवाल है। तो 2 सवाल आपका यहाँ पे है। पहला सवाल है कि अगर नियत कहना भूल जाए, लफ्ज़ कहना मतलब मुंह से निकालना भूल जाए, तो अगर आप फर्ज कीजिए कि आप जोहर की नमाज के लिए वजू कर रहे हैं घर में, यहाँ तक कि बीवी को भी कह दिया भाई अजान हो गई, जोहर का वक्त है, ठीक है, और आपने घर से जोहर का इरादा लेकर के मस्जिद पहुंचे और मुंह से नहीं कहा, नमाज आपकी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि नमाज दिल के इरादे का नाम है। अब घर से जब आए हैं तो ये आना ही आपका ये इरादा बता रहा है पुख्ता कि आप जो है असर ही की नमाज के लिए आए हैं। जाहिर है कोई रात के 3 बजे नहीं आता है जोहर पढ़ने के लिए। जब जोहर के वक्त आए हैं तो इसका मतलब आप जोहर का इरादा ही लेकर आए। तो मुंह से अगर बोलते तो अल्फाज का भी सवाब मिलता, नहीं तो आपको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि आपका आना ही। यहां तक के जरा सुनिए, आपने बीवी से कहा कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, और वाकई वो जोहर का वक्त है, और आप नमाज के वक्त जो है मुंह से असर निकल गया, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। इसका मतलब मुंह का लिहाज ही नहीं है, इरादे का लिहाज है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बड़ी खूबसूरत बात निकल गई है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, तो ये जवाब भी हो गया। और दूसरा क्या था कि क्या हर एक रकात की कज़ा होगी अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाए? जो 12 की जितने रकात आपने बताए, तो नहीं, सिर्फ फर्ज की कज़ा होगी, कज़ा उम्री नहीं, सिर्फ फर्ज की कज़ा होगी, और 3 रकात वित्र जो वाजिब है उसकी कज़ा होगी इशा की। समझ रहे आप? फर्ज कीजिए कि मतलब मैं इसको आसान से कह दूं 20 रकात की कज़ा होगी। जैसे 2 रकात फजर की, ठीक है, 4 रकात जोहर की, आप गिनते जाइए कितने होंगे। 4 रकात जोहर की 6 हो गए, 4 रकात असर की 10 हो गए, 3 रकात मगरिब की 13 हो गए, 4 रकात इशा की कितने हो गए? हाँ, 3 रकात वाजिबुल वित्र। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने हो गए कुल? 20 रकात। सुभान, ये कज़ा होगी, इसकी कज़ा, सुन्नतों की कज़ा नहीं है। सोचे कितनी फैसिलिटी दी है अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह, मेरे हबीब से करीब तो होकर देखो, माफी ही माफी है। सुभान अल्लाह, माफी ही माफी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये तो 2 ज़ैली सवाल थे। अब आपने तरीका पूछा, शायद नमाज का तरीका, ये तो मेन ही सवाल है, बल्कि अगर इस पॉडकास्ट की जान है ये। हाँ, क्योंकि आजकल क्या क्या लोग कर रहे हैं, पांव फैला रहे हैं, हाथा का एकदम बिल्कुल। अल्लाह खैर फरमाए। वैसे अगर हमारे ज़िया नैयर यूट्यूब चैनल पर लोग हैं तो मुझे लगता है कि उस पर जाके अगर मारेंगे ना तो इंशाल्लाह, जैसे मैं सरसरी कह दूं, टोपी पहनकर नमाज पढ़ें, वरना नमाज आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। नमाज होगी या नहीं होगी नहीं कहा, काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमामा के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, और जो बगैर टोपी के या बगैर अमामा के पढ़े हैं वो उससे मुराद वो हरम एहराम की हालत है, या फिर जंग वगैरह का उन्वान है कि वहां पॉसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं? और आज मस्जिद के लोग इतनी टोपियां रखे रहते हैं, फिर भी जो है वो जंग का मैदान समझते हैं उसको भी। इसलिए टोपी के बगैर, मेरा तो उन्वान ही है वो, बल्कि एक घंटे की वो क्लिप है कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ना ही सुन्नत है, यहां तक के टोपी पर अमामा बांधना ये सुन्नत से साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमामा टोपी पर बांधो ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, दुश्मनों की मुखालफत हो, क्योंकि वो लोग टोपी पर नहीं बांधते। कहना यह है कि टोपी पहनकर नमाज पढ़े बच्चे। अरे अगर टोपी तुम नहीं पहनोगे तो हमारी बहन भी कह सकती है ना कि हम दुपट्टा नहीं रखेंगे, उनको फिर क्यों कैद किया जा रहा है? वो भी तो कह सकती है। इतना इजी कैसे ले सकते हैं, वो भी अफजलुल इबादत को। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है ये सोशल मीडिया से दीन ना सीखें। रियलिटी ऑफ दीन जो है शरीयत है, कुरान है, हदीस है। अगर आपको इल्म है तो आप सीखिए, नहीं तो आप जिनके पास इल्म है उनके पास जाइए। समझ रहे हैं? खैर, नमाज पढ़ने का तरीका अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बावुजू, ठीक है, किबला रू, दोनों पांव के पंजों में 4 उंगल का फासला। एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। 4 उंगल। हम पॉजिटिव इंसान हैं, पॉजिटिव दर्श देते हैं। जिनको मानना है माने, फबेहा, नहीं मानेंगे तो वो जाने। ये कहते वो कहते नहीं। हमको इमाम आजम से ज्यादा इल्म नहीं है,
और सुबह कयामत तक हो भी नहीं सकता किसी के पास। वली भी बन जाए तब भी उन्हीं के दामन से वाबस्ता होंगे। गौसे आजम इतने बड़े आरिफ बिल्ला, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल के मुकल्लिद है। और आज का ये पतलून पहनने वाला इंसान वो हदीस से इल्म सीख रहे हैं, माअज़ल्लाह। समझ रहे आप? तो हम दामन तकलीद का सहारा लेते हुए ये बता रहे हैं क्या करना, कि बावजू किबला रू दोनों पांव के पंजों में 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो। आगे एक एक जुमला समझ में, कितने फासला? 4 उंगल। अब जो पूरा पांव एकदम 1 किलोमीटर तक फैला देते हैं, कितना शर्म आता है, कैसा लगता है एकदम बिल्कुल कि मतलब स्टैचू की तरह बन गया इंसान। नहीं, अजीब ही लगता ही नहीं कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। नमाज को लगाना है, हदीस में ऐसा बोलते हैं। उसका हाँ, इसको भी हदीस में है, तो कि पांव को पांव लगाना भी है और कांधे भी कांधा लगाना है, दोनों भी है। अब आप बताइए, आप 6 फुट के हैं और सामने वाला 3 फुट का है, पांव तो लगा देगा, कांधा कैसे लगाएगा? क्या बेवकूफी है। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या बाज को मानते हो बाज को नहीं मानते हो? ये तो यहूदियत है। जिस हदीस में है कि पांव को पांव लगाना है, उसी में है कि मोंढे को मोंढा से लगाना है। अब मैं उस हदीस की भी पहले वजाहत कर दूं। वहां मुराद है मुहाजात, मतलब आगे खड़े नहीं होना, पीछे खड़े नहीं होना, ये मुराद है। पांव को पांव लगाने से मुराद ये है कि पीछे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, सफ में रहना। वो पांव लगाना मुराद नहीं है, सफ में रहना। और जब सफ में रहेंगे तो ये भी आपका इक्वल रहेगा। दोनों पर अमल हो गया कि नहीं हदीस के? तो क्योंकि हम यहूदी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अच्छी बात मुंह से निकल गई, जो वजाहत भी हो गई इसकी। तो 4 उंगल का फासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ, ये बात बड़ी दफा कुछ लोग ये नहीं, दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से ध्यान छू जाएं, इस हाल में के हथेलियां किबला रुख हो। ये किबला रुख नहीं, ये तो आसमान रुख हो गया। ये हो, हाँ, ऐसे ऐसे कीजिए जरा। नहीं, आप ऐसे क्यों? ये हाँ, किबला रुख अब हुआ पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आया समझ में? नहीं, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़ों को मैंने देखे हैं ऐसे करते हुए, तो किबला रुख होना चाहिए ये। अब हुआ किबला रुख अच्छे से, समझ रहे ना आप? हाँ, सुभान अल्लाह। फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नाफ के नीचे लाकर बांध ले, नाफ के नीचे बांध ले, ठीक है ना? अब वही हदीस लाएंगे। तो हम पहले इसका जवाब दे चुके, हमको इमाम आजम से ज्यादा इल्म नहीं। अगर तुमको ज्यादा इल्म है तो फिर रखो अपना इल्म। हमने तो अल्लाह के वलियों को देखा इनके दामन से वाबस्ता होते हुए, तो हम उन सब वलियों को निगलेक्ट करके तुम्हें मानेंगे? माअल्लाह, तुम जब इमाम आजम को नहीं मानोगे तो हम तुमको क्यों माने? समझ रहे ना? हाँ। तो और सना पढ़े, सना सुब्हानका पढ़े, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर ताउज़ यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, ठीक है? और ध्यान दीजिए, सूरह फातिहा जब मुकम्मल करेंगे तो आमीन वहां पर जोर से नहीं कहेंगे, आहिस्ता कहेंगे। अब यहां पर भी वो हदीस लाएंगे। तो पहला जवाब ये कि इमाम आजम ने नहीं कहा, और जब नहीं कहा तो तुम्हारा इल्म अगर उनके बराबर है तो बोल दो। और दूसरा जवाब जो मेरे इल्म का जवाब है कि आमीन खींच कर पढ़ने का हुक्म है, जोर से पढ़ने का हुक्म नहीं है। जैसे उसमें जहरा का लफ्ज है, मद्दा का लफ्ज है, मतलब खींच कर पढ़ना। जैसे खींचेगी नहीं आप? तो मद्दा का लफ्ज है खींचना, समझ रहे ना? हाँ, आवाज नहीं आना, खुद सुन सकना बस। हाँ, आहिस्ता से कहे। उसके बाद कोई सूरत या 3 आयतें पढ़े, या एक इतनी बड़ी आयत हो जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए। अब यहां पर भी देखिएगा, कुछ लोग रुकू का मतलब, मैं मर्दों का तरीका अभी बता रहा हूं, औरतों का हम बाद में बताएं, ठीक है? कि कुछ लोग जो है ना, ये जो आपका घुटना है ना, उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। नीचे नहीं करना है, उस पर जोर डालना है, उस पर जोर डालना है। रुकू में जाओ, घुटनों को हाथ से पकड़ना है। ऐसी जो कर लेंगे, घुटनों को छोड़ देंगे ऐसे एकदम, ये जिसमें फर्ज की जो घुटना है, तो इसको ऐसे एकदम करना है, ऐसा नहीं करना है।
कुछ लोग आगे कर देते हैं, एकदम अजीब तरह उसका होता। तो घुटनों को हाथ से पकड़ ले इस तरह कि हथेलियां घुटनों पर हों, हथेलियां घुटनों पर हों, हाँ, उंगलियां खूब फैली हुई हो, पीठ बिछी हुई हो, पीठ बिछी हुई हो, और सर पीठ के बराबर हो, हाँ बराबर हो, ऊंचा नीचा ना हो, और कम से कम, अच्छा यहां पर एक मसला ऐसा भी है कि अगर उस पर रखा जाए कोई चीज तो गिरे भी नहीं, इस थोड़ा पानी का, हाँ कोई चीज भी, हाँ, फिर कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम कहे, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द भी कहे, अकेले नमाज पढ़ रहा हो, ठीक है। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए, इस तरह के पहले घुटने जमीन पर, ये बात है कि ध्यान से एकदम, कोई लोग डायरेक्ट चले जाते, पहले घुटने जमीन पर रखे, फिर हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर दोनों हाथों के बीच में, ये देखिए ये जो हिस्सा है, इसके आगे भी नहीं, इसके पीछे भी नहीं, ये दोनों हाथों, दोनों हाथों के बीच में नाक, ठीक है। फिर पेशानी रखे, पहले क्या रखेंगे, पहले घुटना, हाँ ठीक है, उसके बाद नाक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के पेशानी और नाक की हड्डी जमीन पर जम जाए, और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से अलग रखे। पेट को रानों, अभी तक नहीं समझे आप, बाजुओं को करवटों उठा के रखना, कोनियां उठाना, ऐसे नहीं, हाँ बाजुओं को करवटों, ठीक है, और पेट को रानों, चिपका के नहीं, हाँ, पेट को रानों, हाँ, और रानों को पिंडलियों, हाँ, रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, अलग रखे। ये बात याद रखेंगे तो औरत की नमाज में आपको आसानी समझ में आएगी। हाँ, और दोनों पांव की सब उंगलियां पेट, सब उंगलियों के जो पेट हैं, हाँ, सब उंगलियों के पेट किबला रू जमे हों, ये एकदम बिल्कुल ये जमे हो, किबले की तरफ हो, हाँ ऐसे ना हो, ये पेट उंगलियों की, ये ना हो, पैर के, हाँ दोनों, जी पैर के उंगलियां मुड़े हुए किबले की तरफ होगा, दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट, ये जो पहले कहा, दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट किबला रू हो, और हथेलियां बिछी हो, हाँ, और उंगलियां किबला को हो, और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला कहे। फिर सर उठाए, फिर हाथ, ध्यान दीजिए ना, पहले नाक सर, नहीं फिर सर उठाए, सर उठाए, रखने में नाक है, उठाने में पहले सर है, हाँ बराबर। फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख करे, दाहिना मतलब राइट, खड़ा रख के किबला रुख, हाँ, और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए। अब वही फिर अहले हदीस यहां पर बोलेंगे दोनों को उधर रख देते हैं, दोनों पांव उधर और दोनों बैठने की जगह जो है अलग, ऐसा बेढंगा लगता कि जैसा कि डॉग बैठा। खैर, और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे, घुटनों के पास रखे, घुटनों के अंदर नहीं, पास रखे। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदा में जाए, और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए, फिर हाथ को घुटनों पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो, दूसरों के खड़ा होने के लिए पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर क़िरात शुरू करेंगे, फिर पहले की तरह रुकू सजदा बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद पढ़े, एकदम पहले की तरह, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी मैं वजाहत करूंगा, कुछ लोगों को पांव में दर्द होता, तो शरीयत ने इस्तिताअत की कैद लगाई है, हम पहले ही बोल चुके हैं, पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी। अगर किसी के पांव हाथ में दर्द है तो वो जैसे भी उठना चाहे वो उठ सकते हैं, वो मुस्तस्ना। लेकिन जिनके पास दर्द वगैरह का मसला नहीं है, उनके मोटे हैं वैसा पांव में बिछा सकते हैं, तो वही तो कहा पॉसिबिलिटी, जिनके पास नहीं है, अब मोटे हैं, दर्द है,
तकलीफ है, वो सब इससे मुस्तस्ना है। उसे जैसे भी मुमकिन है वैसे भी वो अल्लाह की इबादत करेंगे। जी, अब यहां पर तशहुद फिर मैं पढ़ के बता रहा हूं ताकि सीख भी लें लोग। तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब यहां पर देखिए, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब यहां पर उंगली की एक बात आ जाती, कब उठाएंगे कब गिराएंगे। तो सुनिए, तशहुद पढ़ते हुए जब कलमा ला यानी अशहदु अन ला, ध्यान दिए, कलमा ला के करीब पहुंचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली, ये वाली पहले ई वाली, ध्यान दी, और अंगूठे का हल्का बनाए। देखिए आप, ठीक है, बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए, और छंगुलिया और उसके पास वाली हथेली से मिला दे। जैसे ये हथेली से हमने मिला दिया, ठीक है। और लफ्जे ला पर कलमा की उंगली, नहीं, लफ्जे ला पर कलमा की उंगली उठाए, मगर उसको, देखो मगर का, जब मगर कह रहा हूं, मगर उसको फिराए नहीं, उसको हलाए नहीं, हैदराबाद के हिसाब से उसको हलाए नहीं, जैसे अहले हदीस लोग हलाते हैं। हर हदीस के अल्फाज अशारा, इशारा किया। अब आप बताइए, इशारा करना हिलाने के इस्तिमरार को लाजिम है? बोलिए, नहीं लाजिम। जैसे बुलाओ, मैंने आपसे कहा वो लाओ, तो क्या मैं ऐसे से कर रहा हूं वो लाओ? तो ये इशारा है, अशारा का लफ्ज़, अशारा, और अशारा को तहर्रकत बोल दी है। हदीस के अल्फाज में अशारा, मिशकात वगैरह में अशारा, समझ रहे हैं ना आप? तो अशारा को वो क्या कर दे, अशारा दायमन, तो ये गलत है, ठीक है। खैर, अब क्या करें, हिलाए नहीं, पे उठाना है, और कलमे इल्ला पर गिराना है। अशहदु अन ला इलाहा, अभी तक उठाए रखेंगे, इल्लल्लाहु, कलमे इल्ला पे गिराएंगे। जानते हैं इसकी हिकमत क्या बयान किया है मैंने? ला माने होता है नहीं, और अल्लाह माने होता है हो। तो अब ये उठाने का मतलब है कि हम सारे माबूद को उठाकर फेंक रहे हैं, और इल्लल्लाह का मतलब है हम इसको मान रहे हैं। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं ना? उठाना। खैर, और कलमे इल्ला पर गिरा दे, और सब उंगलियां फौरन फिर सीधी कर ले। कुछ लोगों को देखे हैं ऐसे किए रहते, नहीं, सबको एकदम सीधी कर देना है फौरन। अब अगर 2 से ज्यादा रकतें पढ़नी है तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फर्जों की इन रकतों में अलहम्दो के साथ सूरत मिलाना जरूरी नहीं है, लास्ट की जो 2 रकत, ठीक है। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज खत्म करेगा, उसमें तशहुद के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे। क्या दरूद है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी अगर सय्यिदिना का इजाफा करेंगे तो सोने पे सुहागा है, ये कोई गुनाह नहीं है। हदीस में है सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। हुजूर अपने से अपनी तारीफ थोड़े करेंगे, ये तो उम्मत का मतलब इम्तिहान है कि देखता हूं, ठीक है। हाँ, इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ेंगे दुआए मासूरा। मासूरा मतलब कोई मनकूल दुआ, जो सबसे ज्यादा है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दावत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। और ये भी पढ़ते हैं कुछ लोग कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये भी पढ़ते हैं। बहरहाल ये पढ़े या वो पढ़े, या ये दोनों में से कोई याद ना हो तो कोई और दुआ मनकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये भी, हाँ, इसीलिए कहें कि अगर कोई और दुआए मासूरा पढ़े, उसके बाद दाहिने मोंढे की तरफ, ध्यान दीजिए, दाहिने मोंढे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे नहीं देखना, मोंढे की तरफ रखना है। हाँ, जमात वाले जितने रहते, जमात वो तो आपको नियत करनी है, वो अलग बात, लेकिन आपको चेहरा उधर नहीं करना, मोंढे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले मोंढा को देखना है, फिर मोंढे को देख रहे, हाँ, उसके बाद फिर अगर आप चाहे तो पहले मोंढे की तरफ, हाँ,
फिर बाएं तरफ, अब नमाज पूरी हो गई, सलाम फेर कर इमाम, अब इमाम का मामला है, दाएं या बाएं तरफ मुंह कर ले, जो होता है ना वो फिरना, इसलिए कि ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्ट देखिए आप, इमाम तो आपको शरीयत ने बनाया था, लेकिन पीछे आपका चचा भी है, पीछे आपका बाप भी है, पीछे आपका उस्ताद भी है। कहा जा रहा है कि सलाम के बाद मुक़द्दियों की तरफ पीठ करके इमाम साहब ना हो, क्योंकि मकरू है, रिस्पेक्ट के खिलाफ है। इज्जत, क्या इज्जत है, ये तो मर्दों के मसाइल हुए, अब इसमें कोई शुकुक शुबात है नहीं। औरतों के मसाइल जल्दी से आपको बता दें, औरतें तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ ना उठाएं, जैसे हमने उठाया, हाथ ना उठाएं, बल्कि मोंढे तक, ठीक है, मोंढे तक, ये जो मोंढे तक हाथ उठाएं, हाथ नाफ के नीचे ना बांधें, ध्यान दीजिएगा, बल्कि बाएं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर, क्या कहा, बाएं हथेली सीना पर, बाएं हथेली, ठीक है, बाएं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखें, ठीक है ना। रुकू में ज्यादा न झुकें, यहां इसको इजाजत है, रुकू में ज्यादा न झुकें, धीरे से बिल्कुल एकदम, बल्कि थोड़ा झुकें, यानी सिर्फ इस कदर झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, पीठ सीधी ना करें, क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं कि वो, आप समझ रहे हैं इस बात को, हाँ, पीठ सीधी ना करें और घुटनों पर जोर भी ना दें, बल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की उंगलियां मिली हुई हो, मर्दों की तरह कुशादा ना हो, और पांव कुछ झुका हुआ रखें, जैसा मर्द तो स्ट्रेट रखते हैं। यही मैंने बहुत मर्दों को देखे हैं, कुछ ऐसे झुका के रखते हैं, इसीलिए कहा कि यहां पर ध्यान दें, वहां पर ध्यान, दोनों के मसाइल में कैसे अलहदगी है। महज हाथ रख देंगे और हाथों की उंगलियां मिली हुई और पांव को झुका हुआ रखेंगे, मर्दों की तरह खूब सीधा नहीं करेंगे, औरतें सिमट कर सजदा करें, जैसा अभी वही अब जैसा जो पीछे का, बाजू करवटों से मिला दें, वहां क्या था, अलहदा कर दें, यहां है बाजू करवटों से मिला दें, पेट रान से मिला दें, और रान पिंडलियों से मिला दें, और पिंडलियां जमीन से मिला दें। क्या इज्जत का लिहाज किया इस्लाम ने औरतों, इसे कहते हैं तहफ्फुज़े निस्वानियत। अपनी बारगाह में भी हाजिर होने वाली औरतों की इज्जत की हिफाजत का उन्वान इस्लाम देता है। खुदा की बारगाह में हाजिर है पूरी तरह से वो हिफाजत के साथ, फिर भी देखी, क्या आम वक्तों में मुंह खुला रखने की इजाजत देगा इस्लाम? आम वक्तों में कुशादा के साथ घूमने फिरने का हुक्म देगा इस्लाम? अल्लाह पाक तो नफ्स से पाक है, शहवत से पाक है, वहां क्या है आपको, लेकिन वहां भी क्या कहा गया, समेट करके, बाप रे बाप। और कायदे में ध्यान दीजिए कैसे, बाएं कदम पर ना बैठे जैसे हम बैठे थे, बल्कि दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल दें, ठीक है, और बाएं सुरीन पर बैठे, बाएं सुरीन, दूसरे पार्ट को, पीछे के दूसरे जो पार्ट होते हैं उसको सुरीन बोलते हैं, दोनों पार्ट को सुरीन ही बोलते हैं, एक राइट एक लेफ्ट है, तो लेफ्ट को कहा जा रहा, बाएं सुरीन पर बैठेंगे। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें, फर्ज और वाजिब जितनी नमाजें बगैर उज्र के पढ़ चुकी हैं उन सब की कजा करनी होगी, अगर वो सेहतमंद है तो। कुछ औरतें, अच्छा यहां पर नफल के हवाले से भी कुछ लोग अच्छे बिच्चे रहते हैं और नफल बैठकर पढ़ते हैं, नमाज तो हो जाएगी लेकिन आधा सवाब मिलेगा, बिला उज्र जो है नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकते। तो औरत के लिए भी यही हुक्म है, अगर बैठकर वो पढ़ी हैं, औरतें बहुत ज्यादा इसमें होती हैं, फटाफट बैठकर नमाज पढ़ती हैं, बैठकर पढ़ी हैं जानबूझ करके, तो तौबा भी करना होगा उनको। औरत मर्द की इमामत हरगिज नहीं कर सकती, और सिर्फ औरतें, ध्यान दीजिएगा, जमात करें, ये मकरूह तहरीमी और नाजायज है। आगे मैं कहूंगा, औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं, वो घर में शुक्राने की 2 रकात पढ़ लें चलेगा, जुमा और ईदैन वाजिब नहीं। खुदा अपनी बारगाह में समेट कर नमाज पढ़ने कह रहा, खुलेआम तुमको जाकर के नमाज पढ़ने कैसे कहेगा, जो मखलूक है वहां, खालिक के पास जो नफ्स से पाक, शहवत से पाक, वहां
اور ایک بات اس میں اور خاص طور سے کہ مردوں کے پیچھے کیا وہ پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، جب جمعہ اور مطلب عیدین ان پر ہے ہی نہیں، جماعت بھی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے، حافظ قرآن عورتیں تراویح وغیرہ کا اگر مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پر فقہائے متاخرین نے انہیں رخصت دی ہے، تاکہ کم سے کم وہ قرآن کو یاد کر سکے اور یاد رکھ سکے، کیونکہ اگر ایسے ہی انہیں چھوڑ دیں گے تو ایسے ہی وہ ڈھیٹ ہوتی، بھولنے کا خدشہ زیادہ ہوتا، سمجھ رہے نا آپ؟ اس لیے اس کو امامت کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ امام کا آگے مصلی نہیں بچھا جائے گا۔ جیسے ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو مؤذن سب کہاں پہ رہتے ہیں؟ مؤذن سب کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہیں پر ان کا امام رہے گا، یعنی پہلی صف کے بیچ میں جو جگہ ہے وہیں پر۔ اور اس کی حکمت آپ کو بتاؤں، چونکہ پیریڈز وغیرہ کا معاملہ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اسی وقت آئے گا، اگر اس حالت میں آ گیا تو اب جو ہے سامنے ہوگی تو عزت نفس کا عنوان آتا ہے، اگر عورتوں کے بیچ ہی میں ہے تو سبحان اللہ وہ آرام سے نکل سکتی۔ کیا اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ۔ میں اس سلسلے میں عورت کے حوالے سے اور جو اہل حدیث وغیرہ خوب آج کل عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ نماز وغیرہ کی بات کرتے ہیں اور حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ پیریڈز کے عالم میں بھی نبی لے جاتے تھے۔ میں ان کو صاف بتانا چاہتا ہوں، لے جاتے تھے نبی، تم نبی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، نبی آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ایک بھی واقعہ زنا بتاؤ نبی کے زمانے کا، ایک بھی واقعہ زنا نہیں بتا سکتے۔ وہ لٹیرا زمانہ نہیں، خیر القرون ہے، نبی صاحب اختیار ہیں، نبی کے سامنے ہر عورت کنیز ہے، نبی آگے پیچھے یکساں دیکھتے ہیں، سب ریسپیکٹڈ ماحول ہے۔ اس لیے آج عورتیں مسجد وغیرہ ہرگز رخ نہیں کر سکتی، اس حدیث کے تو حوالے سے کر ہی نہیں سکتی، بلکہ حدیث کے الفاظ حضرت عائشہ کے یہ ہیں کہ اگر نبی موجود ہوتے جو تمہارے حالات دیکھ کر کے عبداللہ ابن عمر نے منع کیا ہے نا، یا عمر نے منع کیا ہے نا، تو نبی نے بھی اگر نبی بھی ظاہری طور پر ہوتے تو وہ منع کر دیتے۔ لا منعہن کے لفظ ہیں، کہنا یہ ہے کہ عورتوں پر جماعت نہیں ہے، ضد نہ کریں وہ۔ جیسے کیا، اگر آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا اور پیریڈز آ رہا تو کیا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی۔ جب شریعت آپ کو کہتی ہے تو اس کا لطف اٹھائی، کیونکہ شریعت کو ماننا ہی ایمان ہے، شریعت کے خلاف جانا بے ایمانی ہے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ ہمارے کو تو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے تو وہ آپ رکھیے نا۔ آج دیکھیے نا سب مسافر کو کہاں تکلیف ہوتی، 3 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ جاتے، کپڑے کی گھڑی بھی خراب نہیں ہوتی، استری کیا ہوا کپڑا بھی خراب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مسافر پر نماز آج بھی معاف ہے۔ اور نماز کا حکم وہی ہے کہ قضا کرے، وہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، 92 کلر سے آگے ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے، شریعت ایک دم کنڈیشنز آف ریئل گاڈ ہے، اللہ کا یہ کنڈیشن ہے اور اس کے حدود سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے۔ تو بنی ہوئی چیز کو آپ کو ماننا ہے، اپنے تھاٹ اور اپنی تھنکنگ کو یہاں پر نہیں لگانا۔ بڑی تفصیل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب سے پوچھا گیا تھا مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ مردوں کی نماز کے بارے میں مفصل بہترین انداز سے جو ہے نا پوری تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے، جیسا باوضو ہو جائے، قبلے رخ ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کعبے کی طرف اور کانوں کی لو سے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے بانے اور صدا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہائی لائٹ کریں آپ کے یہ بات امام اعظم نے بتائی ہے۔ اگر آپ اسے نہیں مانیں گے، جیسے کہ آپ لائن حدیث کو قوم پھیلاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اب آپ کہیے جب آپ امام اعظم کا علم نہیں مانتے تو ہم آپ کا علم کیسے مانیں؟ اس لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان جتنے بھی ہیں ان سے آپ ریکویسٹ کریں۔ یہی ہے تو بتایا، ثنا کا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، طاووس تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر کوئی ضم سورہ، کم سے کم 3 آیت پڑھے یا ایسی بڑی آیت پڑھے 3 آیت کے برابر ہو، پھر رکوع کرے۔ رکوع میں کیسا کرے؟ جو گھٹنوں پر اپنی ہتھیلیاں ہو اور گھٹنوں پر اپنا زور ڈالے اور پیٹھ ہماری پوری اسٹریٹ رہے، جیسا پانی کا کھٹورا رکھ دے تو پانی کا کھٹورا پانی نہ گرے، ایسا پیٹھ۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے نا پیر پھیلائے ہوئے، ایک کو ایک پیر لگائے ہوئے،
ऐसा कि बेअदबी के साथ ठहरे हुए हैं। कुछ मर्द जो है जोर से भी नहीं पकड़ते, जी हाँ, घुटने को आगे बस कर देते, घुटने को आगे कर दे, घुटने को स्ट्रेट रखे। ये हाथ ऐसा 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 करके जी हाँ, ऐसा स्ट्रेट, अपने हाथा भी स्ट्रेट होना चाहिए, घुटने भी सामने की तरफ नहीं पीछे की तरफ रहना चाहिए, और हमारी हथेलियों से घुटने को पकड़ना चाहिए, उंगलियां कुशादा होना चाहिए। फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा बढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो रब्बना लकल हम्द बोल के सजदे में जाए। सजदे में जब जाए तो पहले घुटने टेके, फिर उसके बाद हाथे रखें, फिर उसके बाद नाक, फिर उसके बाद पेशानी रखे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा हो गई है बोल के। अब इसके अंदर मर्दों की नमाज के अंदर और औरतों की नमाज के अंदर यह है कि औरतें जो नमाज पढ़ती हैं, जैसा मर्द कानों की लौ तक लगाते हैं, मर्द औरतें बस खांधे तक उठाकर अपने दाहिने हाथ को सीने की तरफ रख के बाइने हाथ के ऊपर रख दे। हाथ आप अपनी छाती के नीचे चेस्ट छाती के नीचे रखें, और उसके बाद जैसा तरीका बताया गया वैसा तरीका है। और जब रुकू करती हैं औरतें, बस अपने हाथे घुटने की तरफ चले जाएं, पूरा धीरे से, पूरा पीठ पूरी जन स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उठ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लका, जब सजदा करती हैं तो अपना पेट रानों से लगाकर और अपने राने पिंडली से लगाकर पूरा समेट कर, और अपने हाथों को भी जमीन पर बिछा के सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला। ऐसा ही करके नमाज का तरीका पूरा मुफ्ती बाहर भी निकाले, जो दोनों पाँव बाहर भी निकाले, अपने लेफ्ट सुरीन पर अपना पूरा वेट डालकर अत्तहियात में बैठना चाहिए, और इसी से नमाज खत्म करते। जब नमाज खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जब तशहुद पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तहिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह पे अपनी शहादत की उंगली उठाए, हल्का करे, ये अंगूठे से और बीच की दोनों उंगली अपनी हथेली को लगा ले, हल्का करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर नीचे करके स्ट्रेट कर दे। उसके बाद दुरूद इब्राहिम, फिर दुरूद मासूरा है, जैसा कि आमतौर पे पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनुबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या कोई और दुआ, जैसा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन, दुआ मासूरा जो मनक़ूल है हदीस शरीफ से, जो जैसा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब, ये भी पढ़ा जा सकता। और सलाम जब फेरते हैं तो अपनी निगाहें मोड़ने को देखें, ऐसा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह के नमाज से बाहर हो जाए। मुफ्ती साहब से अल्हम्दुलिल्लाह 8 सवालात किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा तरीका नमाज, जैसा दिन रात में कितनी नमाजें होती हैं और उसकी औकात क्या है, और उसके अंदर कैसी कौन सी वक्त मकरूहात कितने हैं और मकरू औकात कितने हैं, जब जनाजे की नमाज मकरू औकात में आया तो क्या करना चाहिए, और नमाजों की नियत कैसी करनी चाहिए, इमाम की कैसी है और मुक्तदियों की कैसी है, तन्हा नमाज पढ़ रहे तो कैसी है, सुन्नत की कैसी नियत है, नफिल के और फर्ज की कैसी नियत है, वाजिब, तमाम नियतों के मुताल्लिक भी बताया गया और तरीका भी मर्दों और औरतों का बताया गया है। ये 9 पॉडकास्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन सीखते हैं उलमा अहले सुन्नत, जो हमारा मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा टाइम निकालकर टाइम दिया है कि ये 9 पॉडकास्ट जो चल रहा है तसल्सल के साथ, अल्लाह इसको कबूल और मंजूर फरमाए। जो रियलिटी ऑफ नमाज है, जो स्टेटस ऑफ नमाज है, नमाज क्या है, नमाज इस्लाम का रुकन है, नमाज क्या है, मेराजुल मोमिनीन है, नमाज क्या है, आंखों की ठंडक है। ये नमाज को कायम रखना चाहिए और हर मुसलमान पे फर्ज है। जब हम मसाइल समझेंगे, सीखेंगे, तो हम इबादत का ज़ौक़ और शौक और अल्लाह ताला का खुद हासिल कर सकते हैं और इस सिरातुल मुस्तकीम पे गामजन रह सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए, और नमाज जैसा सही उसूलों के साथ पढ़ना है, अल्लाह ताला हमें तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैं इसी जुमलों के साथ मैं मुफ्ती साहब के दुआओं से इख्तिताम करता हूँ 9 पॉडकास्ट का। लिखम्सुतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा वमा अलैना इल्लल बलाग। पूरी गुफ्तगू का एक खुलासा के साथ फिर दुआ करूंगा मैं, कि जिसमें पहला खुलासा ये है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां इसको बार बार सुने। और एक लफ्ज़ जो मैंने हाईलाइट किया है कि इमाम आज़म की तरह सुबह क़यामत तक किसी का इल्म नहीं हो सकता। जब अल्लाह के बड़े बड़े औलिया इन हजरात के दामन से दामन तकलीद
سے وابستہ ہیں تو پھر آپ ہم کون ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ دام فریب میں نہ آئے. بالخصوص یہ جو اہل حدیث یا جماعت کی جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح سے آپ کو ابھی جیسے نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے وہ صبح بھی سوال نہیں کیا، حالانکہ وہ مستقل سوال ہے، دعا بھی نہیں کرتے. میں نے دعا بھی نہیں کرتے، نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو صبح تو بتا دیا میں نے ٹوپی مطلب دعا کے بارے میں یاد رکھیے گا. اگر دعا اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو پھر کتاب الدعوات بخاری میں نہیں ہوتا، قرآن پاک میں ادعو ربکم نہیں کہا جاتا دعا کرو مجھ سے میں قبول کرتا ہوں، اور الدعاء مخ العبادہ نہیں کہا جاتا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. لہٰذا مرد حضرات، نوجوان حضرات، جب اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے تو مکمل طور پر سے فیض یاب ہو کر جائیے. نماز جو ہے ایک عمل ہے اور دعا جو ہے اس عمل کی جزا ہے. اب آپ جزا لیے بغیر چلے جائیں گے تو یہ کیسا ہوگا؟ اس لیے ہم کہیں گے کہ توجہ سے نماز پڑھیں اور واقعی حسینی نماز پڑھیں، اور یزیدی نماز ہرگز نہ پڑھیں. یزیدی نماز یہ ہے کہ نماز پڑھ کر حسین کو قتل کرنا. یزیدی نماز یہ ہے کہ نبی کو تکلیف دینا. تو جس نماز سے نبی کو تکلیف ہو اللہ تعالیٰ اس کو نمازی کہے گا، ہبا منصورہ کر دے گا. اس لیے ہمیں ایسی نماز پڑھنی ہے جسے نماز حسینی کہتے ہیں. اگر امام حسین نے کربلا کی وادی میں، سنگلاخ وادی میں، اور اس وادی کو انہوں نے لالازار بنا دیا ہو، ایسے عظیم وادی کو لالازار سجدوں سے بنایا انہوں نے اور پورے کنبے کے ساتھ بنایا انہوں نے، ہم پر لازم ہے کہ ان کے احسان کو ہم نہ بھولیں. امام عالی مقام، ہم تیرے احسان کے تلے دبے ہیں صبح قیامت تک، یہاں تک کہ جنت کے حصول تک ہم یہی امید کرتے ہیں کہ میرا امام ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ آج کی اس خصوصی پوڈ کاسٹ کو، نشست کو، حاضری کو قبول فرما، اور جو اس میں کمیاں بیشیاں ہوئی ہو مولا معاف فرما. ہم سب کے اولاد میں برکت عطا فرما، ان سب کو نمازی بنا، میدان کا غازی بنا، حرمین کا حاجی بنا. اہل بیت اطہار کی محبت میں ہم سب کو زندگی جاودانی نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں حسینی بنے رہیں، ہمیں موت بھی مولا خیریت کے ساتھ جذبہ حسینی میں نصیب فرما. یا اللہ ہماری عورتوں کو تصور شہربانو، تصور زینب میں جینا نصیب فرما. ردائے فاطمہ کی تطہیر کے صدقہ طفیل میں عفت و عصمت و نسوانیت کا تصور حسین نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کی پریشانی کو دور فرما. بالخصوص اہل سنت و جماعت کو ترقی، عروج، ارتقاء نصیب فرما. شہادت امام عالی مقام اور محرم الحرام کی اس عظیم ساعتوں اور سعادت سے بھرے لمحات کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بار قرض میں مبتلا ہیں سبکدوشی عطا فرما، جو مرض مہلک میں مبتلا ہیں شفا یابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.